Hello students, this is lecture number 8 on chapter electromagnetic induction. In today's lecture, let us discuss about the concept of mutual inductance and mutual induction. डायग्राम में देखो ये दो सोलेनोइडल कॉइल्स है. These solenoidal coils are kept opposite to each other. सामने सामने रखे हैं. Let this coil is primary coil and this coil is secondary coil. In series with the primary coil, battery and tap key is connected. In series with the second coil, center zero galvanometer is connected. This is one way to put the coils to discuss mutual inductance. Same coils यहाँ पे है. Here the coils are kept side by side. Right? Okay. So the region into which these coils are present, with both the coils, magnetic flux is linked. यानी इस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया से और इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग और दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का सोर्स एक ही है. या तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो. These are the magnetic lines of force passing through both the coils. So magnetic flux is linked with both the coils. अभी किसके साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, that depends upon area of cross section of the coil and number of turns of the coil. तो अलग अलग हो सकता है. तो let magnetic flux link with the first coil is phi1. Magnetic flux link with the second coil is phi2. For first coil, number of turns are N1. For second coil, number of turns are N2. ये हम लोगों ने डिनोट किया. Now do the thing. Close the key K. जैसे आप की को क्लोज करोगे, this battery delivers the current. Current through primary coil starts growing. Current through primary coil starts growing, and as long as current passing through the first coil grows, magnetic flux linked with the primary coil changes. Magnetic field with the primary coil changes. EMF is induced in the primary coil. This is called production of induced EMF in the coil due to change in current in the same coil. ये हो गया सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि जिस कॉइल में से हम लोग करंट को ग्रो कर रहे हैं उसी का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है एंड इन इट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. ये होगा सेल्फ इंडक्शन. सी अभी इस करंट की वजह से क्या होगा, नियर टू दिस कॉइल ये रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद द टाइम. अभी उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड कॉइल भी प्रेजेंट है. This coil is now available in a time changing magnetic field. So because of time changing magnetic field into which the second coil is present, in a second coil also EMF is induced, induced current flows, and galvanometer shows you momentary deflection. So here EMF is induced in the second coil due to change in current in the first coil. EMF is induced in the second coil due to change in current in the first coil. Yeah, let me say neighboring coil. So this phenomenon is called as mutual induction. देखो इसमें जो EMF induce हुआ, this is the production of induced EMF in the coil due to change in current in the coil itself. खुद में से जो करंट पास है और इसमें जो करंट चेंज हुआ और EMF induce हुआ. So this EMF is induced in the coil due to change in current in the neighboring coil. So this is called as phenomenon of mutual induction. वापस समझाता हूँ. एक ही क्लोज दोनों के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है क्योंकि दोनों एक ही रीजन में प्रेजेंट है. किसके साथ कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ये इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा. जब हम लोग ये की को क्लोज करेंगे तो बाय दिस बैटरी द करंट डिलीवर्ड थ्रू दिस स्टार्ट्स ग्रोइंग. जब तक करंट ग्रो होते रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दिस कॉइल कीप्स चेंजिंग. इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट भी फ्लो होगा.
वो जो इंड्यूस करंट फ्लो होगा ये इसने जो करंट डिलीवर्ड की है उसके ग्रुप को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये हो गया सेल्फ इंडक्शन। लेकिन उसी टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड कॉइल भी प्रेजेंट है, तो सेकंड कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक है वो भी चेंज हो रहा है, and as long as it is changing, EMF is induced in a second coil also, and induced current flows in second coil. This is called as mutual induction. Production of induced EMF due to change in current in the neighboring coil is called as mutual induction. तो दोनों डायग्राम का एक्सप्लेनेशन सेम है. These are the ways to put the coil. अलग अलग वेज, इसको फैशन बोलते हैं, कैसे रखोगे. तो ये सब एक्सप्लेनेशन. अभी मैथमेटिकली देखो. तो ये देखो phi 2 1 ये है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल. Phi 2 is magnetic flux linked with the second coil due to first coil for single turn, एक टर्न के लिए. Since how many turns are here? N2. So this is the total magnetic flux linked with the second coil due to first coil. So this magnetic flux will change if there is a change in current in primary coil. So magnetic flux linked with the second coil is directly proportional to the current in first coil. तो मैंने यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया. ये जो कांस्टेंट है इसे मैं पढ़ेगा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ EMI दोनों साइड का डेरिवेटिव लो. सो डी डी टी ऑफ दिस, डी डी टी ऑफ दिस. अभी ये जो M21 है ये मटेरियल डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, सो इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट. सो आई रोट इट आउटसाइड. ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल. सो दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल. So E21 is equal to minus M21 dI1 by dt. Minus sign says Lenz law. जैसे मैंने सेकंड कॉइल के लिए डिस्कस किया, अभी होगा क्या सेकंड कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुआ म्यूचुअल इंडक्शन से, बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूस करंट फ्लोज इन सेकंड कॉइल आल्सो. तो सेकंड कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुआ, लेट दैट करंट इज I2. So current flowing या growing through the second coil I2, that changes the magnetic field link with the coil itself, वो self induction होगा. But that induced current changes the magnetic flux link with pair of the coils, and because of that magnetic flux link with the first coil changes and EMF is induced in the first coil. This is also called as what? Mutual induction. I1 की वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा, I2 की वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा. सो बोथ द फेनोमेनॉन आर कॉल्ड एज व्हाट? म्यूचुअल इंडक्शन. तो देखो ये सेम डिस्कशन अभी फर्स्ट, ये सेकंड कॉइल के लिए हम लोगों ने किया. अभी सेकंड कॉइल के लिए व्हाट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल. ये रहेगा phi 1 2, ये एक टर्न के लिए रहेगा. Since how many number of turns are considered? N1. So you get total magnetic flux linked with the first coil because of second. It will change because of the change in current in the second coil. ये induced current है, लेकिन ये भी change होता है. ये formula. This is the constant of proportionality called mutual induction of first coil with respect to second coil. इसका डेरिवेटिव लो. According to Lenz law, you will come to know. ये देखो मैंने डेरिवेटिव किया. ये हो गया EMF इंड्यूस इन फर्स्ट कॉइल बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इन सेकंड कॉइल. ये हो गया. अभी बाय सिमेट्री ये विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो न्यूमेरिकली ये दोनों वैल्यू सेम रहता है. सो लेट इट बी डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल. तो कैपिटल M अगर मैं लिखेगा तो कैपिटल M का राइट हैंड साइड क्या आएगा? देखो अगर मैंने कैपिटल M लिया तो राइट हैंड साइड आएगा दिस अपॉन दिस. या फर्स्ट पार्ट में कैपिटल M क्या आएगा? ये M है, दिस अपॉन दिस. ये यहाँ से ये रेशो E अपॉन दिस, यहाँ पे भी
E upon, तो देखो मैंने कंबाइन लिखा, m is equal to in terms of flux, ये in terms of induced EMF. So see, production of induced EMF in the coil due to change in current in the neighboring coil. अगर ये सेकंड कॉइल है तो ये EMF इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल. अगर ये प्राइमरी कॉइल है तो EMF इंड्यूस इन अ प्राइमरी कॉइल इट इज ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेकेंडरी कॉइल. ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. ये डेफिनेशन जो मैंने बोला वही. अभी मैं डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशंस ये चीज़ें नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन से ही यहाँ पे मैंने वापस कॉपी पेस्ट किया. सो लेट मी नॉट वेस्ट दैट टाइम. सेम है, सेम, कुछ फर्क नहीं. खाली सेल्फ की जगह म्यूचुअल वर्ड आएगा और सेम सेल्फ की जगह म्यूचुअल वर्ड आएगा एंड सेम कॉइल की जगह नेबरिंग कॉइल. इतने दो वर्ड चेंज होते, बाकी सब सेम है. जो फैक्टर्स है ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, उसमें थोड़े फैक्टर्स ऐड होते हैं. उसमें देखो एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, परमिएबिलिटी, ज्योमेट्रिक शेप, ये 4 पैरामीटर्स तो थे ही ऑलरेडी. अब ये पेयर ऑफ कॉइल्स हैं, तो पेयर ऑफ कॉइल्स आप कैसे रखते हो उसको बोलते हैं फैशन. हाउ यू पुट द पेयर ऑफ कॉइल्स फॉर डिस्कशन, मतलब रिलेटिव ओरिएंटेशन. इस पे भी वैल्यू, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू डिपेंड करेगा और कितने दूर दूर रखते हो उस पर भी डिपेंड करेगा. जितना सेपरेशन बढ़ाओगे उतना उनका कपलिंग कम हो जाता है, इंडक्टेंस कम होता है. तो ये पैरामीटर्स है ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड. जब आप इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस वैसे ही आता जैसे रेजिस्टेंस आता है. जब उनको आप इन सीरीज कनेक्ट करेंगे तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये ऐसे रहेगा L1 प्लस L2 प्लस L3. क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट पासिंग थ्रू ईच रिमेन्स द सेम. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा. तो जो कैरेक्टरिस्टिक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के थे वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है, सेम. ये देखो, मानो L इंडक्टर से कनेक्टेड इन सीरीज है तो ऐसे लिखो. अगर ऑल आर न्यूमेरिकली सेम है तो n टाइम्स करो. जब आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में क्या होता है, करंट इज डिवाइडेड एट ए जंक्शन, करंट इज डिवाइडेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ इंडक्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पे अक्रॉस सेम रहेगा. तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 1/LP, 1/L1, 1/L2, ये सब आएगा. अगर सबका वैल्यू सेम रहेगा तो 1/LP n/L आ जाएगा, यानी LP इज इक्वल टू L/N. अगर आपको LP और LS में रिलेशन चाहिए इलिमिनेटिंग कैपिटल L तो ये आएगा. ये सब मैंने ऑलरेडी आपको रजिस्टर में, कैपेसिटर में पढ़ाया है. सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी जाना है. LS इज n² LP. तो मैंने यहाँ पे ये LS इज इक्वल टू NL, LP इज इक्वल टू N बाय दोनों फॉर्मूले क्लब किए. क्लब करते समय ये देखा कि कैपिटल L इलिमिनेट हो जाएगा, n² बच जाएगा. फिर मैंने वापस से दोनों रिलेशन को क्लब ऐसे किया कि n कैंसिल हो जाए, तो ये रिलेशन आ गया. सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. अभी कैसे रहता है, अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हो या ऐसे कनेक्ट करते हो तो पेयरिंग की वजह से यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करके भी आप फॉर्मूले लिख सकते हो. कैसे थे, मैं दो के लिए समझाता हूँ, जनरलाइज हो जाता है. इफ टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आप उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, m इज इक्वल टू 0, तो सिंपल है, LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2. अगर वो नॉन जीरो लेना चाहते हो तो दो ऑप्शन. अगर आप नॉन जीरो ले रहे हैं और जो सीरीज कनेक्टेड है वो एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ कर, एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ कर, तो दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐड कर +2m आ जाए. If current passing through them, though they are connected in series, but current passing through them are in opposite direction. मतलब उनको रखा ऐसे गया है तो एक में करंट अगर राइट वर्ड जा रहा है तो दूसरे में करंट लेफ्ट वर्ड आता है. द वे दे आर केप्ट इन सीरीज, कंटिन्यूएशन रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे है कि आपको लगेगा कि एक इंडक्टर में से करंट राइट में जा रहा है तो दूसरे कंडक्टर में ये लेफ्ट में जा रहा है. तब ये आएगा अपोजिट डायरेक्शन के लिए -2, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा तो
मतलब इसमें से करंट राइट में जा रहा है, वो कंटिन्यू राइट में जा रहा है अगले इंडक्टर में से, तो ये दूसरा फॉर्मूला है। अगर हम लोगों ने उनको रखा ही ऐसे कि पहले में राइट में गया टर्न होकर दूसरे में लेफ्ट में आया, तो ये माइनस कर लेना। अगर पैरेलल में रहेगा, इंडक्टर म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं करोगे तो सिंपल कंसेप्ट है। अगर नॉन जीरो लेंगे तो 1/L पे लेने का, ये L1 प्लस ये L2 प्लस। ओके, now let us find out the expression for coefficient of coupling between the two circuit. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब दोनों का फ्लक्स में या म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है। ये देखो, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। So what is mutual inductance of second coil with respect to first coil is the magnetic flux link with the second coil upon current in first coil. बहुत याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। Mutual inductance of second coil with respect to first is what? Ratio of flux to current. But flux link with the second coil upon current in the first coil. Similar, mutual inductance of first coil with respect to second coil. Again flux upon current, but flux link with the first coil upon current in the second coil, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में जो चेंज होगा वो डिनोमिनेटर की वजह से अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन। ये हो गया पेयर ऑफ कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कॉइल लोगे तो पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ये होगा N5/I, सेकंड कॉइल का ये होगा N2/2, या दूसरा सफिक्स नहीं आएगा क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ये दोनों, ये एब्सोल्यूट अलोन। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ। अगर मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो बाय सिमेट्री ये भी m है ये भी m है, ये रेशियो न्यूमेरिकली सेम रहेगा, तो ये m² हो जाएगा। m² इज इक्वल टू दिस। खाली मैंने अपने अपने सफिक्स शिफ्ट कर दिए, ये I2 यहाँ लेके आया, I1 इधर लेके आया। अगर मैं I2 यहाँ पे लेके आएगा तो N2/2/I2 ये हो जाएगा कैपिटल L2, ये हो जाएगा N1/I1, ये I1 इधर लेके आया तो ये हो जाएगा L1। मुझे प्रोडक्ट लेके राइट हैंड साइड में L1 और L2 इंट्रोड्यूस करना था, तो मैंने अकॉर्डिंगली सफिक्स लिखा 2/2I2 इधर लेके आया, 1/1I1 इधर लेके आया। तो शिफ्टिंग के बाद ये आएगा, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, ये दोनों स्क्वायर रूट ले लो, ये वैल्यू राइट। अगर आपको प्रोपोर्शनल साइन ऐड करना है तो यहाँ एक कांस्टेंट लिया जाएगा k। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अगर फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कॉइल लेंगे तो फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कॉइल is proportion to flux link with the second coil, and flux link with the second coil is proportional to flux link with the first coil. अगर दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न सेम हो, दोनों कॉइल का एक्सिस कॉमन हो, तो K2 और K1 दोनों का वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि दोनों कॉइल एक ही एक्सिस पे है, दोनों कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, तो क्या करने का, K2 और K1 दोनों 1 हो जाएंगे क्योंकि phi1 एंड phi2 विल बी न्यूमेरिकली सेम। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं, प्रैक्टिकली दोनों फ्लक्स में स्लाइट डिफरेंस रहता है बिकॉज ऑफ नॉन जीरो सेपरेशन बिटवीन देम। मे बी उनके नंबर ऑफ टर्न सेम हो, बट बिकॉज ऑफ सम नॉन जीरो डिस्टेंस बिटवीन देम ये K का वैल्यू कभी 1 होगा नहीं। मतलब कैसे, आपने हीट सेक्शन में पढ़ा हो, अगर 100 कैलोरीज ऑफ एनर्जी कोई सरफेस पे इंसिडेंट हुआ तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 100 कैलोरीज एब्सॉर्ब होता नहीं, 100 कैलोरीज रिफ्लेक्ट होता नहीं, 100 कैलोरीज ट्रांसमिट नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी बाय अदर मीन्स, दैट इज ये K2 का वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है, नॉट 0 नॉट 1, 0 और 1 ही आइडियल केस में है। So K2 and K1 मतलब K का वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, यानी फ्रैक्शन, यानी phi2 और phi1 में प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ नॉन जीरो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो देखो ये m² का वैल्यू मैंने रीराइट किया, अभी मैंने K भी इंट्रोड्यूस कर दिया है क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन है, ये वैल्यू फ्रैक्शन है,
तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग एक K1 और K2 इंट्रोड्यूस करते हैं. K1 और K2 ये नंबर्स हैं जिनका वैल्यू 1 से कम है. ये मैंने ऐड कर दिया. K1 K2 आ गया, ये L1 L2 आ गया. तो देखो m max इज व्हाट K स्क्वायर रूट L1 L2. अब ये जो K का वैल्यू है इट डिसाइड्स m एंड K इज डिसाइडेड बाय द वे यू पुट द कॉइल्स. उसको फैशन बोलते हैं. अब इस डायग्राम में देखो, दोनों कॉइल का एक्सिस कॉमन है. अगर दोनों कॉइल का एक्सिस कॉमन है तो K इज इक्वल टू 1 ले लो. K का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा नहीं. सो दिस इज द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ कॉइल्स. या ऐसे रखो या ऐसे रखो. एक ही एक्सिस पे रखा है या तो सामने सामने से भी. ये एक्सिस एक ही है यहाँ पे. क्लियर. अगर आप उनको थोड़ा यहाँ नॉन जीरो डिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ये देखो, ये नॉन जीरो डिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया मैंने. एयर गैप है और ये नॉन जीरो डिस्टेंस आप जितना बढ़ाते जाओगे उतना K का वैल्यू धीरे 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 कम हो जाएगा. इफ दिस डिस्टेंस इज मेड सिग्निफिकेंटली लार्ज देन K may become 0. क्लियर. तो दोनों में कुछ पेयरिंग नहीं रहेगा, मतलब दोनों पेयरिंग में नहीं रहेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन नहीं होगा. मतलब ये और ये दोनों सिग्निफिकेंटली लार्ज डिस्टेंस से अगर सेपरेट के तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में ये नहीं रहेगा, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में ये नहीं रहेगा. सो दे आर नॉट मैग्नेटिकली लिंक्ड. तो K विल बी व्हाट 0 लॉन्ग डिस्टेंस पे. अदरवाइज जनरल डिस्कशन क्या, जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे K उल्टा सोचते हो. जिस तक क्लोज लाओगे आप तो क्लोज लाओगे तो क्या होगा, K बढ़ेगा क्योंकि आप सेपरेशन अप्रोच करें तो सेपरेशन कम हो रहा है, K बढ़ रहा है, M भी बढ़ रहा है. हाँ, अगर आप कॉइल्स को ऐसे यूज करते हो राइट एंगल टू ईच अदर तो यहाँ कपलिंग हो ही नहीं रहा क्योंकि इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हैं, इधर इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में बिलोंग नहीं करते. उन दोनों में पेयरिंग नहीं हो रहा. तो हियर K टेंड्स टू 0, K टेंड्स टू 0, तो M also tends to what 0. ठीक है. In the next lecture we will discuss about the application related to mutual induction, that is called transformer. Thank you.